Good evening to one and all present here. I welcome you on the Facebook page of Saurabh English School. Today we have gathered here to know the benefits of reading and how to develop good reading habits. But before we start with our session, I would like to ask few questions from you. Do you like to read a book or not? How many hours do you spend in reading a book, a magazine, a newspaper, or even your textbooks? You can post your answers in the comment section. Till then, I'll share my screen with you all. Yes. Normally, when question is asked that how much time do you spend in reading, so many questions come up in our mind. Students will say, no, I do not have time for reading, rather I'll play with my friends. And they will give one argument also. You don't know that physical activity is more important than sitting at one place and just reading. Few students will say, I don't have time to read at all. Many of them, they are very keen to watch TV. Most of the time they sit near the TV and watch सास बहू के सीरियल्स, कुछ भी जो भी आता है टीवी में, दे आर इन फ्रंट ऑफ द टीवी. दे विल नॉट स्पेंड टाइम फॉर रीडिंग. दे विल सिंपली सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड वॉच. मैनी ऑफ देम दे विल से कि नहीं नहीं, बुक नहीं पढ़ी जाती, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, ना मुझे समझ में आए, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको बैठकर आराम से पढ़ पाऊँ. But my dear friends, dear parents, you know, there are many benefits of reading. So all the points are in front of you. We'll discuss one by one. First is self-improvement. You know, when you read books, you develop lot of positive thinking. Whenever any situation comes in front of you, you start thinking whether it is right or wrong for you. Does it have a positive impact on your personality or a negative impact on your personality? You yourself find that you are improving day by day. It increases your knowledge as well. When you read the books based on the culture, tradition, science fiction, on health, your knowledge increases automatically. Last year कोरोना वायरस ऑल ऑफ अ सडन आ गया, बहुत बड़ा पैंडेमिक था. अभी तक हम उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अभी तक लाइफ नॉर्मल नहीं हुई. कोरोना वायरस नया नहीं था, ये पुराना ही था. इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स वायरस के सबको साइंटिस्ट को पता ही थे. अब इतना ज्यादा इसने महामारी फैलाई, तो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? कोई ऐसी मेडिसिन आनी चाहिए जिससे इसकी रोकथाम हो जाए. Isn't it? I think you agree with me. तो ये नॉलेज कहाँ से मिली? From the very first vaccine that was invented against smallpox. स्मॉलपॉक्स को भी एक वायरस ही फैलाता था. तो वो नॉलेज जो वैक्सीन की थी, धीरे धीरे हमने उसको यूज किया एंड हमने अपने लिए कोरोना वायरस के लिए अगेंस्ट एक वैक्सीन रेडी कर दी. So if you read the books, your knowledge increases a lot. Every type of knowledge is there in the books. Reading improves your imagination and creativity. Here I'll give you one example of, you all know Harry Potter. आप जानते हैं हैरी पॉटर के बारे में? यस, आप जानते हैं, मुझे पता है. कितने नॉवेल्स आ चुके हैं हैरी पॉटर के? यस, अराउंड 7. एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस सीरीज? अगेन यू आर राइट, शी इज J.K. Rowling. एंड आपको पता है कि ये बुक कैसे लिखी गई? Once she was moving from Manchester to London by train, and that train got delayed. काफी टाइम उसको बिताना पड़ा स्टेशन पर ही. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी ने हैरी पॉटर का कैरेक्टर रेडी कर दिया. जो जो पॉइंट्स उसके मन में आते गए वो उसको लिखती गई, एंड फाइनली इट वाज इन द बुक इन द फॉर्म ऑफ हैरी पॉटर. अब आप ये सोचेंगे कि हैरी पॉटर की जो ऑथर थी वो ऑल ऑफ अ सडन उसने इमेजिनेशन स्टार्ट कर दी, क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दी? नो. बचपन से ही उसको बहुत अच्छा लगता था छोटी छोटी स्टोरीज लिखने के लिए. उसकी मम्मा भी उसकी बहुत हेल्प करती थी. जब भी वो छोटी स्टोरी लिखती कोई, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती, कोशिश करती उसकी मदर कि उसको पब्लिश कर सके, बट वो नहीं होती. एंड J.K. रॉलिंग, यू नो, उसने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया, बट नाउ शी इज अ बिलियनर, क्योंकि उसकी शुरू से ही, बचपन से ही रीडिंग एंड राइटिंग की हैबिट रही है.
अगर ये रीडिंग एंड राइटिंग की हैबिट हम बचपन से ही बच्चों में डाल दें तो डेफिनेटली बाय द टाइम दे बिकम 20-25 years, उनकी वोकेबलरी, उनकी सब कुछ इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि दे विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. Reading develops your analytical skills. You are able to analyze the situation. अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि यस कुछ गलत हो रहा है, कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज ऑफ बुक्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, आप तुरंत बोल देंगे कि यस ये गलत है. आपकी धीरे धीरे एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होती जाती हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं. ना आप किसी की एक्सप्लॉयटेशन करते हो और ना खुद की करने देते हो. Reading reduces stress. Yes, the point is very perfect. When you read a book, you read a newspaper, you go into a different situation, different imagination. आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं और उस अलग दुनिया में जाकर आप अपनी खुद की टेंशन, खुद की स्ट्रेस एकदम से भूल जाते हैं. Reading improves your communication skills. How? When you read a book, you come across many words. If you do not know the word's meaning, you will find the meaning in the dictionary or you will search it on internet. Your vocabulary improves. You become a writer. I should say you become a better writer and an impressive speaker. Now I'll ask two words from you. Just find out whether you know the meaning or not. One word is already and the other word is already. एक वर्ड है already और दूसरा है already. यस, बताएंगे आप इसका क्या मीनिंग है? already का मतलब होता है, चलो पहले already का मतलब बताइए आप. already, already का मतलब तो दिख ही रहा है हमें, सब तैयार है. एंड already, ALREADY, already मतलब इससे पहले. टू वर्ड्स और देती हूँ मैं आपको, एक्सेप्ट, ACCEPT, एंड दूसरा वर्ड है EXCEPT. These two words they sound similar. जब मैं बोल रही हूँ तब भी आपको similar ही लग रहा होगा, accept and accept, but both of them they have the different meaning. And the person who reads the books can only tell the difference between these two words. What is the meaning of ACCEPT? Accept. Accept का मतलब होता है स्वीकार करना. EXCEPT, accept का मतलब क्या होता है? इसके अलावा. Now, so when you pronounce anything, you are reading anything, you are, a speaker somewhere, you will be able to pronounce the right word at the right time. You cannot use any word anywhere. So reading helps you to improve your communication skills. Your vocabulary improves and you can write in a very better way. You can speak in a very better way. आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा बोलेंगे, लोग आपकी तरफ तुरंत से अट्रैक्ट हो जाएंगे. Now just see, this is the facts that I found. India has literacy rate about 69.3%. What is the meaning of 69.3%? It means that out of 100, 69 people are educated in India. And Finland has the maximum literacy rate, that is 99.2%. This means out of 100, 99 people are educated. Finland is considered the best country in the world in terms of education, economic competitiveness, quality of life, and human development. अब ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि people वहाँ के सभी लोग they are well educated. Out of 100, 99 are educated. Now just see, a data was collected in which they found the number of hours spent reading per person per week, and India tops the list. In India, one person spent about 10 hours 42 seconds for reading, and we are at the top. Second position is backed by Thailand and the third by China.
सो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे डेली, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती जाएगी। Now, normally parents ask, even the students ask, what are the different ways to cultivate a lifetime reading habit? सबसे पहले हमारा पॉइंट्स आर रिटन हियर, बट व्हाट आई फील इज कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि आपने अपने लाइफ में किसी को अपने आप को बनकर दिखाना है। उसके लिए मुझे रीडिंग करनी ही है। First point is how to cultivate a lifetime reading habit is make reading a daily habit. You should target pages per day. जरूरी नहीं है कि आपने 200 पेजेस की बुक ली और आपने उसको खत्म करके ही उठना है। नो, आप 200 पेजेस को मान लो 2 वीक्स में फिनिश करना चाहते हो। अराउंड 15 डेज आर देयर। आप 15 डेज के हिसाब से देखिए कि आप डेली कितने पेज पढ़ सकते हैं और कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आपके पास बुक है, कोई भी बुक ले लीजिए, इट्स नॉट दैट यू वांट टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी सिंपल बुक आपके घर पे है, आप उसी से शुरू कीजिए। बट जो बुक आप शुरू कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट मस्ट बी लाइक्ड बाय यू। ऐसा नहीं है कि बच्चे की सोशल साइंस में इंटरेस्ट है और मैथ्स उसको नहीं अच्छा लगता, तो हम उसको मैथ्स की जबरदस्त बुक पकड़ा दे कि बेटा आपको यहीं से स्टार्ट करना है। नो, अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको वो पढ़ना है। और पेजेस गिन कर पढ़िए कि आज मैंने 20 पेजेस पढ़ने हैं और एक ही बारी में बैठकर पढ़ने हैं। यूँ नहीं है कि 5 पेजेस हमने मॉर्निंग पढ़ लिए, 2 पेजेस हमने आफ्टरनून में पढ़ लिए, फिर सोते वक्त हम नींदों में 10 पेजेस पढ़ रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने भी टाइम के लिए पढ़ना है, एक बारी बैठकर उतने पेजेस आराम से मन लगाकर पढ़ना है। देन क्रिएट अ रीडिंग स्पेस एट योर होम। हम हर जगह बैठकर इत्मीनान से नहीं पढ़ सकते, बिकॉज व्हेन यू रीड यू स्टार्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन। उस इमेजिनेशन के लिए आपके पास घर में एक छोटी सी स्पेस होनी चाहिए जहां आप बैठकर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी टेंशन पढ़ सकते हैं। देन यू हैव टू कट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर यूजलेस एक्टिविटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूजलेस एक्टिविटी कौन सी हम करते हैं। हम बहुत करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, बट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने हमें। इंजॉयमेंट के लिए और बहुत कुछ है, बट थोड़ा सा हम उसमें से अपना टाइम को काट लें, कट कर दें, और वही टाइम जो हमने बचाया है वो हम रीडिंग पर लगा दें। एंड रीडिंग भी हमने ज्यादा नहीं करनी। कितना करना है? थोड़ा सा, जो कि हमें अच्छा लगता है। और क्या पढ़ना है? जो हमें अच्छा लगता है। देन यू मस्ट बी हैविंग योर फेवरेट बुक्स। इतनी सारी कॉमिक बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी कॉमिक बुक ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कुछ अच्छी हैबिट्स के ऊपर बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपकी फेवरेट बुक आपके घर में है, इट्स नॉट कि आपने एक बारी पढ़ दिया और उसको छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट इट। दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू री रीड योर बुक। ठीक है, जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे ना, आपको खुद फील होने लग जाए कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपने पहले छोड़ दिए और उनका मीनिंग अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ, isn't it? तो वो मीनिंग आपको सेकंड थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो यू शुड री रीड योर फेवरेट बुक्स। देन लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई फील इज कि अगर आप इतनी मोटी बुक लेकर बैठ जाएंगे या बच्चे को दे देंगे कि बेटा ये पढ़ ले, देन no one will develop interest. Even I will not have interest in such a moti book. You should start reading from thinner books. पतली बुक्स भी आती हैं, 100 पेजेस की भी होती है, 150 की भी होती है, 200 की भी होती है। तो अगर आप पतली बुक पढ़ेंगे, यू विल लव टू रीड मोर, क्योंकि वो पतली बुक आपने स्टार्ट की, पेजेस खत्म, बुक खत्म, आप नई बुक लेने वाले बन गए। So whenever you are starting your reading practice, you should start from thinner books. जितनी ज़्यादा थिन बुक होएगी उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगी। एंड आपको खुद में भी एक फक्र महसूस होएगा कि मैंने एक बुक पढ़ दी है, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट बुक। Now this is very surprising. I hope you are able to recognize this person in the image. Yes, he's our Bhagat Singh, Shahid Bhagat Singh. He was a voracious reader. Yes,
He read nearly 50 books during his school time. एंड वो कॉलेज भी गए थे। उन कॉलेज दिनों में भी उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अराउंड 200 बुक्स पढ़ी। और वो जेल में उन्होंने 716 डेज बिताए, जिसके दौरान उन्होंने 300 बुक्स पढ़ डाली। जस्ट इमेजिन हिज पेशेंस, जस्ट इमेजिन हिज अबिलिटी टू रीड द बुक्स। एंड ऐसा नहीं है कि कोई कोई कर सकता है, जिसके अंदर भी ये हैबिट आ जाए, आई थिंक उनको रीडिंग के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, उनको सूझता ही नहीं है। Some facts about reading habit. Children who reads 3000 words each day take top 2% positions in standardized test. ये तो मैंने देखा हुआ है। जो बच्चों की अच्छी रीडिंग हैबिट होती है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। वो अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वो दूर से ही चमकते हैं। एंड वेन एवर दे अपियर फॉर द टेस्ट, टेस्ट कोई भी हो सकता है आफ्टर 12th, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, वो टॉप 2% पोजीशंस में आ ही जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, उनको हर सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग हो जाता है। मैं किसी भी सिचुएशन को अलग तरीके से देख रही हूँ। बच्चा जो अच्छी रीडिंग हैबिट है, जिसकी वो बहुत टाइम दिया है उसने रीडिंग को, वो उस सिचुएशन को अलग तरीके से देख रहा है। मे बी वही सिचुएशन उसका आंसर हो। इन दिस वे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छी उनकी रीडिंग हैबिट होती है, वो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट में टॉप पोजीशंस ले ही जाते हैं। ओके, नाउ बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बताते हैं कि इन दिस पैंडेमिक बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम पर बैठे रहते हैं। वीडियो गेम दे कीप ऑन प्लेइंग, और एल्स मोबाइल पर वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ना वीडियो गेम से एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें अभी पता नहीं लग रहा, बट आगे जाके जैसे जैसे इसकी एडिक्शन बढ़ती जाती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है। बट अगर बच्चों को हम बचपन से ही रीडिंग की अच्छी हैबिट डलवा दें, तो बिलीव मी 600% उसका वो बेनिफिशियल प्रूफ होएगी इन फाइटिंग द स्ट्रेस। नाउ द एवरेज रीडिंग स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन इज 230 वर्ड्स पर मिनट। आप ट्राई करके देखना। मैंने ट्राई किया था कि अगर मैं 1 मिनट मन लगाकर पढ़ रही हूँ, तो अराउंड 230 वर्ड्स मैं पढ़ पाती हूँ विद अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट पढ़ दिया और बात खत्म, नो। आराम से बैठकर पढ़िए और देखिए कि पर मिनट आप कितना पढ़ सकते हैं। एंड 230 वर्ड्स 2 पेजेस के करीब हो जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए, आपने 1 मिनट में आपने 2 पेजेस फिनिश कर दिए। और अगर आप 30 मिनट्स पढ़ते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि आप कितने पेजेस खत्म कर सकते हैं। Then proficient readers usually have better paid jobs. This so I have seen in my own career. जो अच्छे रीडर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग से ही चमक रही होती है। They have good vocabulary, isn't it? And the person who has good vocabulary always bag good jobs. उनके पास अच्छी जॉब होती ही है। ओके, अब एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रेजेंटेशन, कि बहुत सारे पेरेंट्स आकर ये कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि अगर बच्चों को बचपन से ही पास में बिठाकर पढ़ाया जाए, मदर या फादर बच्चे के पास बैठकर उसको कोई भी बुक पढ़ाती है, चाहे स्टोरी बुक ही है, दादी माँ की ही बातें हैं, दादी माँ की जो स्टोरीज आती हैं वही पढ़ाए, फ्रेंड्स की स्टोरीज पढ़ाए, कोई कार्टून स्टोरी पढ़ाए, ऐसे बच्चे जो होते हैं, दे आर अहेड ऑफ दोज हु आर नॉट बीइंग रेड बाय देयर पेरेंट्स। यानी कि जिन बच्चों को बचपन में नहीं पढ़ाया जाता स्टोरीज, उन बच्चों से वो आगे होते हैं। So parents should also give proper and sufficient time to their kids in the, in their beginning years of their life. That will definitely help them in developing better positions everywhere. देन ये थोड़ा बड़ों के लिए आ जाता लास्ट पॉइंट, कि अगर हम रीडिंग करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। हमारे जो मन में टेंशन होती है, जो स्ट्रेन होता है हमारे ब्रेन में, वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर सिंड्रोम, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं इन ओल्ड एज।
So these are the famous people who love to read books. They are really, famous among us. The first picture shows our 11th president, Mr. APJ Abdul Kalam. He was the 11th president, a scientist, a great teacher, and a writer. He had a lot of passion for books. Then बापूजी तो ज़्यादा टाइम जेल में बिताया, बट आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जहाँ जहाँ रहे हैं उनकी बुक्स उनके साथ साथ रही हैं। उनकी अलग शेल्फ्स होती थी जहाँ पर वो जो भी बुक्स पढ़ते थे वो वहाँ पर रखते थे, और उनके पास भंडार था बुक्स का एंड नॉलेज का। I think you are able to identify the third picture. Yes, he is the co-founder of Microsoft, Bill Gates. Once he was asked, by a journalist, "Sir, do you love to read books?" He said, "Yes, I love to read books because when I read the books, lot of curiosity, starts in my mind. And when lot of curiosity is there in my mind, I start thinking of new things. And when you create new things, your business grows." And he's very right. That is why he's a, billionaire now. Priyanka Chopra. She was Miss World in 2000. I hope you know. She was the winner of Miss World, contest. Once she was asked about the question, "Ki, ma'am, do you read?" She said, "Yes, I read a lot. And if you give me an option between buying an expensive clothes or reading a book, I will opt for the second option, that is reading a book." So, my dear friends, keep reading the books. You are still small children. If you develop reading habits at a very young age, definitely you will develop into a personality person in the long run, and you will have a holistic development. Thank you.